اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم۔ امید کرتی ہوں بیٹے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جی آج کا لیکچر شروع کرنے سے پہلے گزشتہ لیکچر کو دہراتے چلتے ہیں۔ گزشتہ لیکچر جو ہمارا تھا اس میں ہم نے اردو بے کا کام کیا تھا۔ اردو بے کی ہم نے کہانی نویسی، کہانی لکھی تھی، ہم نے سچ کا انعام عنوان پر ہم نے کہانی لکھی تھی۔ اور آج ہم جو کرنے جا رہے ہیں، آج ہم کریں گے اردو الف کا کام۔ اردو الف کا آج ہم ہمارے نصاب میں شامل سبق نمبر 7 آئیے پاکستان کی سیر کریں۔ آج ہم اس سبق کی پڑھائی کریں گے، اس کے ساتھ ساتھ اس میں مشکل الفاظ جو ہیں ان کو خط کشیدہ کرواتے ہوئے آپ کو معنی لکھواؤں گی۔ تو اس کی پڑھائی پاکستان کی سیر، جس میں پاکستان کی تاریخی عمارات کا ذکر بھی ہوگا، پاکستان کی تفریحی مقامات کا بھی ذکر ہوگا، پاکستان کے مختلف شہروں اور وہاں کی کیا کیا چیزیں جو ہیں وہ خاص ہے، وہاں پاکستان میں جو بھی درآمدات یا برآمدات ہم کرتے ہیں اس میں پاکستان میں کون سی ایسی چیزیں ہیں جو پاکستان کے مختلف شہروں میں بنائی جاتی ہے اور وہ باہر کے ملکوں میں بھی ہم بیچتے ہیں۔ اس کے علاوہ ہر شہر میں کوئی نہ کوئی ایک ایسی چیز ہے، ہماری ضرورت کا کوئی نہ کوئی سامان پاکستان کے کسی نہ کسی شہر میں بنایا جاتا ہے، اور اسی کی وجہ سے وہ شہر کافی حد تک مشہور ہے انہی چیزوں کی وجہ سے۔ اور اس کے علاوہ اگر دیکھا جائے تو یہاں پر پاکستان میں بہت سی تاریخی عمارات ہیں، ان کا ذکر ہوگا اس سبق میں۔ تو ہم اس کو پڑھتے ہیں، دیکھتے ہیں پہلے اس کے مقاصد کیا ہیں۔ پہلا ہے پاکستان کے صوبوں سے واقف ہو سکے۔ سب سے پہلا تو یہ کہ بچوں کو آپ بچے جو ہیں آپ اس چیز سے واقف ہو سکے کہ پاکستان کے کتنے صوبے ہیں، ان کے کیا کیا نام ہیں، ٹھیک ہے۔ تو جیسے آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان کے 4 صوبے ہیں اور ان کے نام پنجاب، سندھ، سرحد، بلوچستان، جو کہ اب اگر دیکھیں تو پنجاب، سندھ، بلوچستان اور خیبر پختونخوا، اور کئی جگہ پر ایسا کہا جاتا ہے کہ 5 صوبے ہو چکے ہیں، پنجاب، سندھ، بلوچستان، خیبر پختونخوا اور گلگت بلتستان، ٹھیک ہے۔ اس کے بعد دوسرے صوبوں کے بارے میں اہم معلومات جان سکیں۔ ہمارا صوبہ پنجاب ہے، اس کے علاوہ جو ہمارے باقی صوبے ہیں ان کے بارے میں بھی ہم معلومات حاصل کر سکیں کہ جو باقی صوبے ان میں کیسی زبان بولی جاتی ہے، کیسا لباس پہنا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کے علاوہ دوسرے صوبوں کی اہمیت سے آگاہ ہو سکے۔ تو جیسے پاکستان کو مختلف صوبوں میں بانٹا گیا ہے، تو ہر صوبے کے لحاظ سے پاکستان کے جو سب لوگ ہیں وہ کسی بھی صوبے میں رہتے ہوں، ہم سب ایک ہیں اور ہم سب ایک دوسرے کے لیے اہمیت رکھتے ہیں۔ بے شک ہم صوبوں میں بڑھ چکے ہیں، لیکن ہر صوبہ اپنی جگہ بہت اہمیت کا حامل ہے۔ محاورے کی پہچان کر سکے۔ اب اس سبق میں دیکھیں گے، ہم پڑھیں گے جب، تو اس میں بہت سے محاورات کا استعمال کیا گیا ہے۔ اور محاورہ کس کو کہتے ہیں؟ جیسے کہ کل بھی ہم نے محاورہ کیا ہے، اپنے گزشتہ لیکچر میں بھی جو ہے کہانی کے ساتھ ہم نے محاورات کا استعمال بھی کیا تھا، اور آج بھی ہم وہ انشاء پردازی کے ساتھ محاورات والا بھی کریں گے۔ محاورہ جو ہے، محاورے اس میں بہت استعمال ہوئے ہیں، تو یہاں پر محاورے کی پہچان، اور یہ اس سبق سے پہلے ہم اپنے جو سابقہ سبق ہے، جو پہلے سبق ہے، ان میں بھی ہم محاورے کے بارے میں پڑھ کے آ چکے ہیں کہ محاورہ دو الفاظ کا ایسا مجموعہ جو کہ حقیقی معنوں میں بیان نہ کیا گیا ہو بلکہ غیر حقیقی معنوں میں لکھا گیا ہو، اس کو کہا جاتا ہے محاورہ، ٹھیک ہے۔ اب اس کی پڑھائی شروع کروں گی، اس کے ساتھ ساتھ آپ کو مشکل الفاظ کے معنی لکھواؤں گی، وہ لکھتے جائیے گا۔ فلک بوس، فلک کہتے ہیں آسمان کو، بوس بوسہ سے ہے، بوس ہوتا ہے چومنا، فلک بوس آسمان کو چومنا، اور یہ ایک محاورہ ہی ہے، اور اس کا معنی ہے بہت بلند، ٹھیک ہے۔ فلک بوس آسمان کو چومنا، اور اس کا اصل معنی ہے بہت بلند یا آسمان کو چھونا۔ الامان و الحفیظ، الامان و الحفیظ، اللہ کی پناہ۔ آثار قدیمہ، قدیم سے ہے یہ لفظ، قدیم ہوتا ہے پرانا، آثار قدیمہ پرانی عمارات
या पुराने ज़माने के निशानात, पुरानी निशानियाँ, ठीक है। आसार, असर से है तो इसका मायने है निशानी। कदीमा, कदीम से है तो इसका मायने है पुराना, तो पुरानी निशानियाँ। हल्का बगोश, हल्का बगोश कहते हैं फरमाबरदार को। मलिया मेट, ये लफ्ज़ है मलिया, लाम के नीचे ज़ेर आएगी, ये मीम के ऊपर ज़बर है, ज़ेर जो है वो लाम के नीचे है, ठीक है। मलिया मेट, मलिया मेट होता है मट्टी में मिला देना या तबाह बर्बाद कर देना। सयाह, सैर करने वाला। जफाकशी, जफाकश से है जफाकशी, तो इसका मायने है बहुत ज़्यादा मेहनती या बहुत ज़्यादा मेहनत, मेहनती नहीं सॉरी मेहनत या बहुत मेहनती, ठीक है। हमारा प्यारा वतन पाकिस्तान 14 अगस्त 1947 ईस्वी को दुनिया के नक्शे पर उभरा। नक्शे पर उभरा का मायने क्या है? नक्शे पर उभरना मतलब वजूद में आना, लिख लें। नक्शे पर उभरा, वजूद में आया। पाकिस्तान कुदरती वसाइल से माला माल मुल्क है। कुदरती होता है जो अल्लाह की तरफ से हो। कुदरती वसाइल से माला माल होता है बहुत ज़्यादा। इसकी सोना उगलती ज़मीन में हर तरह की फसलें पैदा होती हैं। सोना उगलती यहाँ पर क्या है इसका असल मायने? सोना उगलती ज़मीन, सोना उगलती से मुराद है ज़रख़ेज़। सोना उगलती ज़मीन यानी ज़रख़ेज़ ज़मीन। इसमें खुश जायका फलों के बागात भी हैं। इसके सीने पर बहने वाले दरिया खेतों को सैराब करते हैं। सैराब करना होता है पानी देना। इसमें फलक बोस पहाड़ी चोटियाँ भी हैं। फलक बोस आसमान को छूने वाली, ठीक है, वो मैंने ऊपर आपको लिखवा दिया हुआ है। गीत गाती आबशारें, आबशार की जमा है। आबशार होता है चश्मा, पानी का चश्मा। आब पानी, शार आबशार पानी का चश्मा। तो आबशारें का मायने है पानी के चश्मे। इसके हुस्न को चार चांद लगाती हैं। चार चांद लगाना मुहावरा है। चार चांद लगाना का मायने होता है खूबसूरती में इजाफ़ा करना या इज़्ज़त में इजाफ़ा करना। हुस्न चार चांद लगाती हैं, हुस्न को चार चांद लगाती हैं। अल्लाह ताला ने हमारे मुल्क को समंदर से भी नवाजा है। पाकिस्तान की सरजमीन 4 सूबों पर मुश्तमिल है। इन सूबों में पंजाब, सिंध, खैबर पख्तूनख्वा और बलूचिस्तान शामिल हैं। हर सूबा पाकिस्तान की तरक्की और खुशहाली में अपना किरदार अदा कर रहा है। कोई किसी सूबे का रहने वाला हो, वो पाकिस्तान के साथ दिलो जान से मोहब्बत करता है। बलूचिस्तान रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। यहाँ पर रकबा का मायने लिखें घिरी हुई ज़मीन, गिरी नहीं घिरी, घेर लेना, घिरी हुई ज़मीन। रकबे के लिहाज से पाकिस्तान का सबसे बड़ा सूबा है। इसका दारुल हुकूमत कोयटा है। इस सूबे की आबादी गुंजान नहीं, करीब करीब 70 लाख लोग इस सूबे में आबाद हैं। गुंजान का मायने होता है आबाद, ठीक है। घना, गुंजान का वैसे असल मायने होता है घना या मुत्तसिल, ठीक है। तो गुंजान का यहाँ पर मायने क्या है? आबाद, घना, आबाद, मुत्तसिल। करीब करीब 70 लाख लोग इस सूबे में आबाद है। बलूचिस्तान की सरहदें पाकिस्तान के बाकी तीनों सूबों से मिलती हैं। यहाँ बोली जाने वाली बड़ी बड़ी ज़ुबानों में बलूची, ब्राहवी और पश्तो शामिल हैं। ये ज़ुबानों के नाम हैं, ठीक है। बलूचिस्तान के कुछ हिस्सों में सिंधी भी बोली जाती है। बलूचिस्तान का ज़्यादातर रकबा बंजर पहाड़ों पर मुश्तमिल है। यहाँ सर्दियों में खूब सर्दी पड़ती है। गर्मियों के मौसम में दर्जा हरारत खूब बढ़ जाता है। सिब्बी यहाँ का गर्म तरीन मकाम है। यहाँ पर लिखे इसका बंजर पहाड़ यानी पत्थरीले पहाड़, ठीक है। अच्छा,
26 मई 2010 ईस्वी को यहाँ वो गर्मी पड़ी कि अल-अमानो अल-हफीज़ यानी अल्लाह की पनाह। अगले पिछले सभी रिकॉर्ड टूट गए। इस रोज़ इस मुकाम का दर्जा हरारत 53 डिग्री सेंटीग्रेड रहा। पहाड़ी इलाका होने की वजह से यहाँ कभी कभार ज़लज़ले भी आते हैं। 1935 ईस्वी में आने वाले एक शदीद ज़लज़ले से कोयटा शहर बिल्कुल मलियामेट हो गया था। मलियामेट हो गया यानी मट्टी में मिल गया या तबाह बर्बाद हो गया। बलूचिस्तान की सरजमीन फलों की पैदावार के लिहाज से मशहूर है। पाकिस्तान का 90% अंगूर यहाँ पैदा होता है। चेरी और बादाम भी वाफर मकदार में पैदा होते हैं। यहाँ पैदा होने वाले दीगर फलों में खुबानी, आड़ू, अनार, सेब और खजूर शामिल हैं। ये सूबा मादनी वसाइल से माला माल है। यहाँ सुई के मकाम से कुदरती गैस भी निकलती है। बलूचिस्तान में हाल ही में ग्वादर के मुकाम पर बंदरगाह तामीर की गई है। इस सूबे को ये एजाज़ भी हासिल है। एजाज़ होता है इज़्ज़त के कायद आज़म रहमतुल्लाह अलैह ने ज़िंदगी के आखिरी अय्याम इसी सूबे के एक सेहत अफ़ज़ा मुकाम ज़ियारत में गुजारे। सेहत अफ़ज़ा होता है सेहत बख्शने वाला, और अय्याम कहते हैं दिनों। यौम की जमा है। यौम होता है दिन, अय्याम दिनों। बलूचिस्तान में पगड़ी लिबास का अहम हिस्सा है। यहाँ घुटनों तक लंबे कुर्ते और घेरदार शलवारें पहनने का रिवाज है। घेरदार वो बहुत ज़्यादा घेर वाली शलवारें होती हैं। बलूची ख़वातीन ख़ास किस्म का लिबास पहनती हैं। इनकी कमीज़ के सामने की जानिब लंबी जेब लगी होती है। आमतौर पर कमीज़ पर कढ़ाई की होती है और इस पर शीशे का काम होता है। यहाँ की औरतें बड़ी सी चादर भी इस्तेमाल करती हैं। पंजाब दो लफ्ज़ों पंज और आप से मिलकर बना है। पंज के मायने हैं पाँच और आप के मायने पानी के हैं। पंजाब कितने अल्फाज का मजमुआ है? 2 अल्फाज का मजमुआ। गोया पंजाब के मायने हुए 5 दरियाओं की सरजमीन। इस सूबे की सरहदें भी बाकी तीनों सूबों से मिलती हैं। पंजाब का दारुल हुकूमत लाहौर है। इसे पाकिस्तान का दिल कहा जाता है। ये शहर सदियों से इल्म और सकाफ़त का मरकज़ रहा है। सकाफ़त कहते हैं तहज़ीब। मरकज़ महवर। मुल्तान, फैसलाबाद, सियालकोट, गुजरांवाला और बहावलपुर का शुमार पंजाब के बड़े शहरों में होता है। फैसलाबाद को पाकिस्तान का मैनचेस्टर कहा जाता है। मैनचेस्टर इंग्लिस्तान का एक ऐसा शहर था जो कपड़े की सनत के कारखानों की वजह से मशहूर था। और फैसलाबाद में भी जो कपड़े का ज़्यादा काम है वो फैसलाबाद में ही। पाकिस्तान के शहर फैसलाबाद को कपड़े की वजह से माना जाता है, क्योंकि कपड़े की ज़्यादा जो फैक्ट्रियाँ हैं, जो कपड़ा ज़्यादा बनता है वो फैसलाबाद में बनता है। इसीलिए इसको मैनचेस्टर का नाम दिया गया। मैनचेस्टर इंग्लिस्तान के एक शहर का नाम है जो कपड़े के कारखानों की वजह से मशहूर है। ठीक है। यहाँ कपड़ा बनाने की सनत है। खेलों के सामान और आलाते जराही यानी इलाज करने वाले या ऑपरेशन करने वाले आलात बनाने में सियालकोट का कोई सानी नहीं। सानी होता है दूसरा। सानी का मायने अरबी में सानी का मतलब है दूसरा। अजीम फ़लसफ़ी शायर अल्लामा मोहम्मद इकबाल इसी शहर में पैदा हुए थे। वज़ीराबाद में आला किस्म के चाकू छुरियाँ बनाई जाती हैं। गुजरात की पहचान उम्दा किस्म के फ़र्नीचर के साथ साथ पंखा साजी यानी पंखा बनाने की सनत भी है। पंखा साजी यानी पंखे बनाना की सनत भी है। गुजरांवाला में बिजली से चलने वाली अशिया मसलन वाशिंग मशीनें, पंखे, रूम कूलर और हीटर बनते हैं। चनियोट में बना हुआ फ़र्नीचर अपनी मिसाल आप है। पंजाब की ज़मीन नहायत ज़रख़ेज़ है। ज़रख़ेज़ होता है काश्त के काबिल। यहाँ बेहतरीन नहरी निज़ाम मौजूद है। ज़मीन की ज़रख़ेज़ी की वजह से यहाँ फसलें खूब उगती हैं। गंदम, कपास, गन्ना और चावल यहाँ पैदा होने वाली मशहूर फसलें हैं। छांगा मांगा का जंगल अपनी नौइयत के लिहाज से दुनिया में इनफरादियत रखता है। इनफरादियत होता है अलग मुकाम, अलग शनाख्त या अलग मकाम। ये 12,510 एकड़ पर फैला हुआ है। ये दुनिया का सबसे बड़ा जंगल है जिसे खुद उगाया गया है।
चुलिस्तान के रेगिस्तान भी इसी सूबे में है। यहाँ खेड़ा के मुकाम पर दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान है। पंजाब में कोयले के भी वाफर ज़खायर मौजूद हैं। ज़ख़ीरा की जमा है ज़खायर, वाफर होता है बहुत ज़्यादा या कसरत से। इसके अलावा पंजाब में साहिवाल के करीब हड़प्पा से मिलने वाले आसार कदीमा भी ख़ास अहमियत रखते हैं। आसार कदीमा पुरानी इमारत या पुरानी निशानियाँ। सिंध को महरान के नाम से भी पुकारा जाता है। सिंध का लफ्ज़ सिंधु से निकला है। संस्कृत में सिंधु दरिया को कहते हैं। दरिया सिंध की वजह से इसे ये नाम दिया गया है। यहाँ का दारुल हुकूमत कराची है। ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा शहर है। इसे रोशनियों का शहर कहा जाता है। पाकिस्तान की सबसे पहली बंदरगाह भी कराची में है। बानी पाकिस्तान कायद-ए-आज़म मोहम्मद अली जिन्ना का ताल्लुक़ कराची से था। इनका मज़ार भी कराची में है। मोहम्मद बिन कासिम ने 712 ईस्वी में राजा दहर को शिकस्त दी और सिंध को फ़तह किया। मोहम्मद बिन कासिम के हुस्न सलूक से मुतासिर यानी असरअंदाज होकर, हुस्न सलूक अच्छा रवैया, गैर मुस्लिमों की एक कसीर तादाद, कसीर होता है बहुत ज़्यादा, हल्का बगोश इस्लाम हो गई यानी इस्लाम की पैरवी करना या इस्लाम के इताअत या इस्लाम कबूल कर लेना। ताहम अब भी सिंध में हिंदू कौम खासी बड़ी तादाद में आबाद है। सिंध की आबादी का 7.5% हिंदू आबादी पर मुश्तमिल है। सिंध में बोली जाने वाली बड़ी ज़ुबान सिंधी है। वादी सिंध की तहज़ीब नहायत कदीम है। मोइंजोदारो से मिलने वाले आसार कदीमा यहाँ के कदीम लोगों की फ़नी महारत और आला म्यार ज़िंदगी का पता देते हैं। ठट्ठा का कदीम तारीख़ी शहर इसी सूबे में है। यहाँ की जामा मस्जिद और मंछर झील बहुत मशहूर हैं। यहाँ मकलिका कब्रिस्तान है। इसे दुनिया के बड़े कब्रिस्तानों में शुमार किया जाता है। सूबा सिंध का ज़्यादातर रकबा बंजर और गैर आबाद है। बंजर होता है जो काश्त के काबिल ना हो। जहाँ जहाँ आपाशी के लिए पानी मौजूद है वहाँ फसलें होती हैं। यहाँ पर आपाशी यानी फसलों को पानी देना। खेती को या फसलों को। यहाँ आम, खजूरों और केले के बागात हैं। सिंध में लोग भेड़, बकरियाँ और ऊँट पालते हैं। सिंध में 3.5 करोड़ के लगभग लोग आबाद हैं। यहाँ की सिंधी टोपी और अजरक ख़ास तौर पर मशहूर हैं। सिंध के मशहूर शहरों में हैदराबाद, सक्खर, नवाबशाह, मीरपुर ख़ास और लाड़काना शामिल हैं। खैबर पख्तूनख्वा का पुराना नाम शुमाल मगरबी सरहदी सूबा था। इसका सूबाई दारुल हुकूमत पेशावर है। मर्दान, डेरा इस्माइल ख़ान, एबटाबाद, हरीपुर और बन्नू इस सूबे के मशहूर शहर हैं। यहाँ ज़्यादातर लोग पश्तो ज़बान बोलते हैं। खैबर पख्तूनख्वा के मशरक़ी हिस्सों हज़ारा डिवीज़न ख़ासतौर पर एबटाबाद, मनसहरा और हरीपुर में हिंद को बोली जाती है। आपने दर्रा खैबर का नाम तो सुना होगा। दर्रा होता है दो पहाड़ों के दरमियान जो फासला हो या रास्ता। दर्रा दो पहाड़ों के दरमियान फासला या दो पहाड़ों के दरमियान रास्ता। यह भी इसी सूबे में है। अफ़गानिस्तान जाने के लिए इस पहाड़ी दर्रे में से गुज़रना पड़ता है। इसकी लंबाई 53 किलोमीटर है। ये सूबा अपने कुदरती नज़ारों की फरावानी की वजह से भी मशहूर है।